بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین آزماؤ پر خوش آمدید۔ اس چینل پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس کا موضوع یقین ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں اور استاد اگر واقعی استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جس طرح والدین دنیا اور آخرت میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ استاد کا بس نہیں چلتا کہ جادو کی چھڑی گھما کر شاگردوں کو خیر ہی خیر بنا دے، مگر جہاں تک ہو سکے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے وابستہ یہ افراد یقین کو اپنا رہنما بنائیں۔ یہ احسن التقویم مخلوق کہیں شر و دواب نہ بن جائے۔ درس و تدریس سے وابستہ افراد 19-20 سال خود حصول علم کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور پھر جب پیشہ معلمی سے وابستہ ہوتے ہیں تو حاصل شدہ علم اور خیر کو بانٹنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ صرف علم بانٹنے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ طالب علموں کی اچھی تربیت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ استاد دنیا میں علم اور محبت پھیلانے والا انسان ہے۔ استاد نفرتیں نہیں پھیلاتا، استاد فرقے نہیں بناتا، استاد کبھی متعصب نہیں ہوتا، بلکہ استاد ہر طرح کی تفریق سے بے نیاز ہو کر خیر بانٹتا ہے۔ یہ چینل یقین آزماؤ میں نے اپنے شاگردوں کے لیے بنایا ہے جو وقتاً فوقتاً مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ چینل میرے شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے لیے ہے اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہر سیکھنے والا اس چینل سے استفادہ کرے۔ اسے زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں ابہام، شکوک و شبہات اور الجھنیں درپیش ہیں ان کا حل یقین خیر میں تلاش کرے۔ زیر بحث موضوع یقین کی دولت بھی میرے دوستوں اور شاگردوں کے کیے گئے سوالات اور موجودہ دور میں بے یقینی اور تخریب کے اثرات سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے مختصراً واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس عطا میں دین، مذہب، ملت، قوم، خاندان، رنگ و نسل، مقام و مرتبہ، علم و دولت اور جنس و عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں، رحمتیں اور صلاحیتیں ہر انسان پر بالکل واضح ہیں۔ انسان کی تخلیق سے متعلق قرآن پاک میں کافی آیات موجود ہیں۔ انسانی تخلیق سے متعلق مٹی، خون اور نطفہ کا مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ ظاہری طور پر اپنے جسم پر نظر ڈالیں تو یہ ظاہری اعضاء سر، گردن، دھڑ، ٹانگوں اور پاؤں وغیرہ پر مشتمل ہے۔ کچھ ظاہری جسمانی اعضاء کا سب کو پتہ ہے، مگر جسم کے بیشتر اعضاء اور نظام نارمل نظر سے مخفی ہیں۔ جیسا کہ ایک انسانی جسم میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں، ہر نظام کی مخصوص کارکردگی کیا ہے، ہر نظام میں کون کون سے اعضاء کام کر رہے ہیں، انسانی جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہیں، انسانی جسم میں کل کتنے پٹھے ہیں، انسانی جسم میں کل کتنی رگیں ہیں، انسانی جسم کتنے خلیات پر مشتمل ہے اور سب سے بڑا خلیہ کون سا ہے اور سب سے چھوٹا سیل کون سا ہے، انسانی جسم میں کل کتنے جوڑ ہیں اور ان جوڑوں کے کتنے گروہ ہیں اور ہر گروہ میں کتنی ہڈیاں ہیں اور ہر ہڈی کیا کام کرتی ہے۔ یہ اعضاء اور ان کی کارکردگی نظر کے سامنے ہے یا مشینوں کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک تفصیلی علم ہے اور جنیات کے ماہر اس پر بے شمار تحقیقات کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ وہ جسمانی اعضاء ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی صلاحیتیں بھی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جس طرح جسمانی اعضاء اور صلاحیتوں کا صحیح علم اور صحیح استعمال ہمارے جسم کو صحت مند رکھتا ہے، اسی طرح
रूहानी सलाहियतों का ठीक इस्तेमाल हमारी रूह को बीमार होने से बचाता है। बिलाशुबा रूह को जिस्म पर फजीलत हासिल है। बेशक ताकतवर रूहानी निज़ाम बदन को भी कवी बना देता है। जिस तरह मजबूत जिस्म बीमारियों से महफूज रखता है और अगर बीमारी आ भी जाए तो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम उसे जल्द सेहतयाब करता है, इसी तरह मजबूत रूहानी निज़ाम इंसान को शर और शैतानी अमाल से महफूज रखता है। रूहानी सलाहियतों में से यकीन खैर एक बहुत बड़ी सलाहियत है। बच्चे की पैदाइश के साथ ही कुछ नेमतें, रहमतें और सलाहियतें उसे अता कर दी जाती हैं। इनमें से कुछ सलाहियतों को परवान चढ़ाने और तक़वियत देने की ज़रूरत होती है। हम बेहतरीन परवरिश और तरबियत से इन सलाहियतों को निखार देते हैं। कुछ सलाहियतें उसे वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ ही जो सलाहियतें उसे अता कर दी जाती हैं उनमें से एक रूहानी सलाहियत यकीन है। जिस तरह बच्चा पलता है, परवरिश पाता है और तरबियत पाता है, इसी तरह इसका यकीन पलता है, परवरिश पाता है और तरबियत पाता है। यानी यकीन की परवरिश और तरबियत भी बच्चे की परवरिश और तरबियत के साथ शुरू हो जाती है। यकीन की ठीक तरबियत और यकीन का ठीक इस्तेमाल इंसान को मरने और मिटने नहीं देता, बल्कि इंसान को बकाए दवाम बख्शता है। यकीन की तरबियत पर अफराद, माहौल, ज़ाती मुशाहिदा, ज़ाती इल्म और ज़ाती तजर्बा भी असरअंदाज होता है। मुझसे सवाल किया गया कि हमें किसी को ये बताने की और ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि तुम्हारे पास यकीन की क़ुव्वत है, इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास फ़ैसले की क़ुव्वत है, इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास सोचने की सलाहियत है, इसका इस्तेमाल करो। अब बात को अच्छी तरह समझें और गौर करें और तवज्जो दें। अगर आप गौर करेंगे, तवज्जो देंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किसी भी शख्स को हम उसकी मौजूद सलाहियत को बरूए कार लाने की ताकीद क्यों करते हैं। इसलिए कि ये सलाहियत खुदा की अता है, इसको वो ज़ाया ना करे और इससे काम ले। ये ताकीद सिर्फ रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि जिस्मानी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए हर वक्त की जाती है। बल्कि सच तो ये है कि जिस्मानी सलाहियतों के इस्तेमाल पर सारी तवानाई खर्च कर दी जाती है। अगर यही कोशिश रूहानी सलाहियतों पर आजमाई जाती तो जिस्मानी सलाहियतें ख़ुद ब खुद जिला पाती। हमारे यहाँ रूहानी सलाहियतों से मुतल्लिक इदराक बहुत ही कम है, या समझ लें कि रूहानी ताकतों पर यकीन है ही नहीं। बेयकीनों के बीच पलने वाला बेयकीन रह जाता है या फिर शर को अपना लेता है। हम ज़ाहिरी सलाहियतों पर तवज्जो देते हैं। हम बातन और गैब को मानने वाले इन सलाहियतों पर खुद शाकी हैं। हम बातन और गैब को मानने वाले इन सलाहियतों पर खुद ही शाकी हैं, मगर काफ़ी हद तक ज़ाहिरी सलाहियतों पर तवज्जो दी जाती है। आपने घरों में बारहा सुना होगा, तुम भी अपने हाथ से काम कर लो, तुम भी अपने हाथ पाँव हिला लो, उठ जाओ, तुम्हारे पाँव पर मेहंदी लगी है। हम हरकत का दर्स क्यों देते हैं? हम किसी को हरकत का दर्स इसलिए देते हैं कि हरकत में बरकत है। हम बखूबी जानते हैं कि निकम्मा इंसान सिर्फ अफराद खाना पर बोझ नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत और धरती का बोझ है, और बोझ थका देता है। हम इंसान को खुददार और गैरतमंद बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे हाथ पाँव के इस्तेमाल की ताकीद करते हैं और हाथ पाँव के इस्तेमाल की मस्बत अंदाज में ताकीद करते हैं, और ये नहीं कहते कि जाओ इस ताकत के बलबूते पर किसी को मार डालो। वालिदैन बच्चों की जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बड़े जतन करते हैं। हम बच्चे की मालिश करते हैं कि हाथ पाँव मजबूत हो,
उसे चूसने और फीडर पकड़ना सिखाते हैं कि उसकी गिरफ्त मजबूत हो। हम खुद तोतले बांध कर तोतला बोल कर उसे बोलना सिखाते हैं। बार बार बच्चे की कुव्वत गोयाई की मशक करवाते हैं। बोलो बोलो अल्लाह, बोलो बिस्मिल्लाह, बोलो मामा, बोलो पापा। इस तरह हम बच्चे की कुव्वत गोयाई को रवां करते हैं। हम लोरियाँ सुनाकर उसकी कुव्वत समात को तक़वियत देते हैं। बच्चा करोलिंग करे तो सहन में साथ साथ फेरते हैं। उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। मेरा 90% मुशाहिदा है कि एक बच्चे को पूरे का पूरा ख़ानदान तोतली ज़बान में कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। ख़ानदान का हर फर्द बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है और इस अमल पर खुश भी होता है। जब बच्चा चलने की उम्र को पहुंचता है तो अनवा अक़साम के खिलौनों के साथ साथ नन्हाल से वाकर भी आती है। बच्चा इसके सहारे चलना सीखेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले के साथ फजल इलाही तरखान की दुकान हुआ करती थी और वो बच्चों के लिए बड़े शानदार रंगीन झूले बनाया करता था, जिसके नीचे 3 पहिए लगे होते थे और झूले की बनावट और रंगों का इम्तिजाज कमाल होता था। हमारे ख़ानदान में जैसे ही बच्चा सहारा लेकर खड़ा होने की उम्र को पहुंचता, उसे वो झूला लाकर दिया जाता था। वो उसके सहारे जैसे ही खड़ा होता, वो झूला खुद ब खुद आगे चलता था और इस तरह बच्चा भी साथ साथ कदम उठाता था। बच्चा पहला कदम उठाता था तो दस्तूर के मुताबिक कुछ बांटा जाता था और बिस्मिल्लाह बोलता तो भी रस्म व रवाज के मुताबिक खुशी की जाती। बल्कि कुछ घरानों में ये रवाज अब तक है। बड़ी ही दिलचस्प बात है, इसी बच्चे को अगर चुप कराना हो या डराना हो तो आवाज़ें निकाली जाती हैं। हाय चुप हो जाओ, जिन्न आ जाएगा, सो जाओ बला आ रही है। हमने बच्चे को बला का यकीन तो दे दिया, मगर बला का सामना करना और मुकाबला करना ना सिखाया। आगे चलकर हम स्कूल भेजने के शौक़ में किताबें, कापियाँ और स्टेशनरी लेकर देते हैं। रफ्ता रफ्ता पढ़ने की तलकीन करते हैं। उसका जहन बना देते हैं कि पढ़ोगे तो पास होगे, पढ़ोगे तो कामयाब होगे, और बच्चा पढ़ता भी है। वालिदैन गरीब हों या अमीर, फारिग हों या मसरूफ़, अनपढ़ हों या पढ़े लिखे, वो बच्चे की जिस्मानी सलाहियतों और जिस्मानी सेहत से बाखबर रहते हैं। सुस्त हो तो तशवीश, जिस्म गर्म हो तो तशवीश, सर पाँव पर चोट लग जाए तो तकलीफ़। हर मामले में वालिदैन मोहतात रहते हैं। वालिदैन बच्चे को खाना तो देते हैं मगर बांटना नहीं सिखाते। वालिदैन बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ तो देते हैं मगर मुहाफ़िज़ बनना नहीं सिखाते। वालिदैन बच्चे को आग से डराते हैं कि आग से जल जाओगे, मगर ये नहीं बताते कि हसद करोगे तो जल जाओगे। बच्चे को तेज़ दौड़ने से मना करते हैं कि गिर जाओगे, मगर ये नहीं सिखाते कि किसी को गिराओगे तो भी गिर जाओगे। बच्चे को शोर गुल और चीखने से मना करते हैं कि गला ख़राब हो जाएगा, मगर ये नहीं समझाते कि पड़ोसी डिस्टर्ब होगा। हम बच्चे को अल्लाह का बताते हैं, अल्लाह पर ईमान की तलकीन करते हैं, मगर अल्लाह की मौजूदगी पर यकीन परवान नहीं चढ़ा पाते। पाक नबी से प्यार है मगर पैगाम नबी का पास नहीं है। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। हम उसके सामने इबादत और अहकामात की लंबी फहरिस्त रखते हैं, मगर इन पर बच्चे का यकीन मजबूत नहीं कर पाते। अफसोस, सद अफसोस कि यकीन की तरबियत यकीन वाले ही करते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो खुद पता ही नहीं कि यकीन क्या है। ये अटल हकीकत है, यकीन बहुत बड़ी ताकत है। और ये भी हकीकत है कि यकीन अगर शर पर है तब भी ताकत है, और इंसान अगर बेयकीन है तो उसकी बेयकीनी भी ताकत है। अगर इंसान शर पे रह के ये सोचता है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर डालूंगा तो वो तहस नहस कर डालता है। अगर शर पर रहकर वो इंतकाम का सोचता है कि मैं फ़लाँ को मार डालूंगा तो वो मार डालता है। और अगर वो बेयकीन है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो वो कभी नहीं कर पाता। और अगर उसका
خیر پر یقین ہے تو جس چیز کا وہ تھان لیتا ہے وہ کر لیتا ہے کہ میں نیکی کروں گا اجر پاؤں گا، میں سچ بولوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ نکمہ انسان گمان کرتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا اور وہ نہیں کر سکتا۔ بیکاری کو محنت پر یقین نہیں ہے کہ محنت میں عظمت ہے یا برکت ہے، اسے بس یہی ہے کہ میں گداہ کر کے دولت پاؤں گا، اور وہ گداہ کر کے دولت پاتا بھی ہے۔ یقین ایک ایسا جذبہ ہے، اس کو جدھر موڑو گے یہ تمہاری خواہش کے مطابق ادھر ہی مڑ جائے گا۔ یقین بہت خوبصورت لفظ ہے۔ یقین ایسا لفظ ہے جس کے اندر طاقت بھری ہوئی ہے۔ آپ لفظ حسد پہ غور کریں تو لگتا ہے جیسے یہ خود ہی حاسد ہے۔ آپ لفظ مکروہ پہ غور کریں تو وہ لفظ ہی مکروہ لگتا ہے۔ مگر یقین ایسا لفظ ہے، اسے دیکھتے ہی سکون، اطمینان اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا واحد جذبہ ہے۔ اگر یہ اللہ پر ہے تو مومن بنا دیتا ہے، محمد و آل محمد پر ہے تو عاقل بنا دیتا ہے، انسان پر ہے تو عاشق کامل بنا دیتا ہے، اپنی ذات پر ہے تو بہادر بنا دیتا ہے، اور خیر پر ہے تو نادر بنا دیتا ہے۔ یقین اپنی تربیت کے دوران اپنی حالتیں بدلتا ہے۔ یقین بنتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے۔ اگر ہم بے یقینوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم پر ضرور ان کا اثر ہوتا ہے، پھر یقین کمزور ہو جاتا ہے یا پھر وہ شر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور شر کا جذبہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گرد و نواح میں منفی سوچ کے لوگ ہیں تو ہمارا یقین بھی انہی کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے۔ یقین ایسی چیز ہے کہ آپ جیسا سوچو گے اس کو ایسا پاؤ گے، یعنی انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم یقین کی تربیت خیر کے اصول پر کریں، اور یہ تربیت 50% ماں باپ اور ماحول سے ملتی ہے۔ جیسا ماحول ہوگا ایسے ہی یقین کی تربیت ہوگی۔ رفتہ رفتہ علم اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور علم یہی مانتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مشاہدہ کیا وہ آپ کا یقین بن گیا، جو دیکھا وہ آپ کا یقین ہے، یعنی علم الیقین اور عین الیقین۔ لیکن حق الیقین تو بہت ہی بڑی منزل ہے، اور بہت ہی خوش نصیب اس منزل کو پاتے ہیں۔ جو کوئی حق الیقین کو کسی دین، مذہب یا ملت سے منسوب کرتا ہے وہ ہٹ دھرم ضدی اور متعصب ہے۔ حق الیقین کو کسی بھی مذہب سے منسوب کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ حق الیقین میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ قسمت سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے، اور حق الیقین کو ہم کسی مذہب، کسی دین، کسی ملت سے منسوب نہیں کر سکتے۔ کرونا کے دنوں کا واقعہ ہے کہ مجھے خوشاب جانا تھا، زمین کی خرید و فروخت کا مسئلہ تھا اور میرا جانا بہت ضروری تھا۔ میرا بھانجا بار بار مجھے فون کر رہا تھا۔ میں سرگودا کے 47 اڈے پر آئی، ایک کوچ خالی دیکھی۔ جب مڑنے لگی تو ڈرائیور نے کہا میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ مجھے خوشاب بہت جلدی جانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اڈے پر دور دور تک کوئی اور سواری نہیں ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا یہ تو ابھی خالی ہے۔ اس نے کہا میڈم آپ قدم رکھیں بھر جائے گی۔ اچانک میرا رخ ڈرائیور کی طرف مڑ گیا کہ یہ میرا شاگرد تو نہیں ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا اس نے سکول کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر مجھے گمان ہوا کہ یہ ضرور میرے فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف ہے، اور عقیدتاً یہ کہا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا یہ جملہ سن کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور موبائل نکال کر اپنے بھانجے مہدی حسن کو کہا کہ بس میں پہنچ رہی ہوں۔ ابھی میسج
कार के मैंने सर ऊपर उठाया तो धड़ाधड़ सवारियां गाड़ी में दाखिल हो रही थी और गाड़ी भर गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक दूसरी कोच खड़ी थी। हाँ, उसका चालान हुआ या फिर गाड़ी में कोई ख़राबी हुई, जो भी हुआ, ये गाड़ी भर गई। मगर मेरे ज़हन में यही जुमला गर्दिश करता रहा, मैडम आप कदम रखें, गाड़ी भर जाएगी। मैं अपने ख़ानदान में कुछ रूहानी और इल्मी शख्सियात से मुतासिर भी हूँ, खुसूसन अपनी वालदा, उनकी तालीमात पर अंधा यकीन रखती हूँ। मैं टीचर भी हूँ और लिखारी भी हूँ। मुझे तजस्सुस हुआ कि इस बच्ची ने ये जुमला क्यों कहा। जैसे ही शाहपुर वाला पुल ख़त्म हुआ, वहाँ सब सवारियाँ उतर गईं। ड्राइवर ने कहा, आपने कट्ठा रोड पर उतरना है या पुराना अड्डा पर। मैंने कहा, बेटा मुझे कट्ठा रोड पर उतार दो। साथ ही मैंने पूछा कि बेटा आपको पता था कि पीछे से गाड़ी में सवारियां आ रही हैं, या आपने वैसे ही कहा कि अभी गाड़ी भर जाएगी। उस बच्ची ने मुझे जो जवाब दिया मुझे आज तक नहीं भूलता। उसने कहा, मैं 7 बजे से अड्डे पर खड़ा था। अड्डे के बाहर एक ऐनक बेचने वाला भी उसी जगह मेरे साथ खड़ा था। आपने ऐनक वाले से 2-3 ऐनकें खरीदी। जैसे ही आप मुड़ के डाइवो अड्डे की तरफ गईं, उसकी तमाम ऐनकें बिक गईं। मैं ये देख रहा था। आप डाइवो अड्डे से वापस मुड़ के जब मेरी गाड़ी की तरफ आईं और मुझसे पूछा, तो मुझे यकीन था कि अगर आप गाड़ी में बैठ गईं तो गाड़ी भर जाएगी। मैं उसके यकीन पर हैरान रह गई और मैंने पूछा कि बेटा आपको ये यकीन की ताकत कहाँ से मिली है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे फादर एक सब्ज़ी बेचने वाले थे और उनसे एक स्कूल मास्टर सब्ज़ी लिया करते थे। वो जब भी मेरे फादर से सब्ज़ी लेते थे, मेरे बाबा की सब्ज़ी सारी उसी दिन बिक जाया करती थी। जिस दिन वो सब्ज़ी नहीं लेते थे, वो सब्ज़ी इसी तरह बच जाती थी। इस तरह बच्चों को अपने वालिदैन पर यकीन होता है। बच्चों को माँ की दुआ पर यकीन है। बच्चों को अपने उस्ताद पर यकीन है। यकीन किसी डिग्री, ओहदे या किसी ख़ास तबके से वाबस्ता नहीं है। ये यकीन डॉक्टर को मसीहा बना देता है, पीर को मुर्शिद बना देता है। लोग शफा को डॉक्टरों से मंसूब कर देते हैं। बचपन से सुनते आए हैं, पीर बड़ा के यकीन बड़ा, और यकीन जीत जाता है। ये हकीकत है कि यकीन की जीत होती है, लेकिन यकीन खैर की, वरना यकीन तो टूट भी जाते हैं। यकीन अगर खैर पर है, तो अगर आपका किसी इंसान पर या मादी ज़राइर पर यकीन ख़त्म हुआ है, तो यकीन कामिल आपको टूटने नहीं देता, वो आपको मजबूत रखता है। बाज़ औक़ात हमें यकीन होता है कि फ़लाँ इंसान बुरा नहीं है और वो बुरा साबित हो जाता है, तो फिर यकीन करने वाला तो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म क्यों नहीं होता? कि उसका यकीन कामिल इन हादसात से बुलंद है। बाज़ औक़ात आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, मगर आप कामयाब नहीं होते, तो क्या मिट जाते हैं, मायूस होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस मकाम पर यकीन कामिल आपको डटा रहने पर आमादा करता है, साबित कदम रहने पर आमादा करता है। जबकि वो लोग जो यकीन की तरबियत से महरूम रहते हैं, वो शिकस्त खा जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये मौजू बहुत तवील है और यकीन कामिल के मौज़ूआत मैंने खुद देखे हैं। आइंदा किसी वीडियो में इस पर मज़ीद बात होगी। बस नतीजा ये है कि यकीन की दौलत किस्मत वालों को मिलती है। वो इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन से हक़ुल यकीन तक पहुंच जाते हैं। और जो वालिदैन खैर पर यकीन रखते हैं, जो अखलाकी कदरों, जज़ा सज़ा और आईने फ़ितरत पर यकीन रखते हैं, वो अपने बच्चों को खैर पर चलना सिखाते हैं। वो सिर्फ़ खैर को सामने रखते हैं। छोटी मोटी चीज़ों, ख्वाहिशात या तवक्कुआत के ख़त्म होने से उनका हक़ और खैर पर यकीन कभी ख़त्म नहीं होता। वो यकीन के उस मरकज़ से जुड़ जाते हैं जो बेयकीन नहीं होने देता। और यकीन की ये दौलत मैंने अपनी वालदा से पाई है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं
جہاں میں نے اپنی والدہ کو یقین خیر پر ثابت قدم پایا۔ اللہ سب کو ایسے والدین عطا کرے جو ان کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ یقین کی صحیح پرورش پر خصوصی توجہ دیں۔ آمین۔